الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير، والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع گناہوں کی معافی کے لیے بلند آواز سے اور درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ بہرائچ شریف کی سرزمین پر جو جشن سرکار خواجہ غریب نواز کے نام پر منعقد ہے، دوستو، یہ پرنور محفل جس کی نسبت خواجہ خواجگاں عطائے رسول سرکار سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے، آج میں مختصر وقت میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کے ان گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس سے ہمارے اور آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے۔ نے کرم فرمایا، اور ایک نیک بچے کی ولادت بسعادت ایک شریف گھرانے میں ہوتی ہے۔ سادات گھرانے میں سنجر کی زرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جب پلا بڑھا، پرورش پایا، اپنے باغ میں ایک روز گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، مادر مشفقہ ہیں، مگر کچھ روز کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بچے کی عمر 9 برس کی ہے، بچہ اپنے باغ میں گھوم رہا ہے، کھجور کا انگور کے درخت لگے ہوئے ہیں، بچہ گھوم کر کے اپنے باغ کے درختوں میں پانی دے رہا ہے۔ تب تک اس باغ میں ایک بزرگ کا داخلہ ہوتا ہے جس بزرگ کا نام ابراہیم قندوزی ہے۔ ابراہیم قندوزی جب باغ میں گئے، پیشانی کی لکیر پکڑ لی، ارشاد فرمایا، بیٹا لاؤ، کچھ انگور کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت بزرگ بچے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں انگور کا ایک خوسا پیش کر دیا۔ آپ نے انگور کا خوسا لیا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا بچا دے دیا، لو بیٹا تم بھی کھا لو۔ اب بیٹے نے کھایا، کھاتے ہی دل کی دنیا بدل گئی، کائنات کا نقشہ عجیب دکھائی دے رہا ہے۔
آپ نے اس باغ کو بیچ دیا, جتنی رقمیں تھی سب خیرات کر دیا. اسی بچے کا نام خواجہ غریب نواز ہے, اسی بچے کا نام معین الدین حسن ہے. اب آپ فقر کے ماحول میں اپنی زندگی کو ڈھال کر کے نکل پڑتے ہیں اپنے گھر سے. حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک عجیب دنیا ہے. معین الدین جا رہے ہیں, سرکار معین الدین اب چلے حج کرنے کے لیے. تعلیم پہلے حاصل کی, تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اور جب آپ حج کرنے کے لیے پہنچے, خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتی ہے, دل کی دنیا بدلی. فرش کعبہ کو حرم شریف میں آپ اپنی نگاہوں سے جھاڑ رہے ہیں اور آپ اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں کہ یہ غیب سے آواز آتی ہے, اے معین الدین تم اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں میرے مولا تو اپنے مقبول بندوں میں مجھے شامل فرما لے. اے مولا تو مجھے اپنا عرفان عطا فرما دے. آواز آتی ہے معین الدین جاؤ, تمہارے لیے یہ معاملات ہو گیا. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. معین الدین تمہیں قرب خدا کا نصیب ہو گیا. معین الدین تم کامیاب ہو گئے ہو. سرکار غریب نواز حج کر کے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے, اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو دل کی دنیا بدلی ہوئی ہے, رات کی تاریکی ہے, آنکھیں لگی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس جلوہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا تھا کہ سلطان الہند غریب نواز مچل گئے. آقا نے ارشاد فرمایا, بیٹا معین الدین جاؤ, تمہیں ہندوستان کا سلطان بنایا جا رہا ہے. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عراق دیا جائے, ہندوستان یا رسول اللہ مجھے نہ دیا جائے, وہاں کے کفار بڑے سخت ہیں. تو آپ بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں. غریب نواز نے پوچھا یہ کون سی آبادی ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ ہارون ہے. کہا لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ اس آبادی میں ایک اللہ کا مقبول بندہ بیٹھا ہے, وہ لوگوں کی حاجتوں کو سنا کرتا ہے, اسی بندے کے پاس سب بھاگ رہے ہیں, اسی کے پاس سب جا رہے ہیں. سرکار غریب نواز آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد جب ہارون میں داخل ہوئے, مکان کے قریب پہنچے, جب آپ نے دیکھا نگاہ پڑی تو بزرگ جو بیٹھے تھے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں آؤ بیٹا معین الدین آؤ, میں تمہارا منتظر تھا, تمہیں انتظار میں کر رہا تھا, آ جاؤ میں تمہیں ساری امانتیں سونپ دوں. اب میری زندگی کے لمحات تھوڑے دن کے لیے ہیں. اتنا سننا تھا کہ آپ تعجب میں پڑ گئے کہ آبادی مجھے معلوم نہیں تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا, ابھی بزرگ کا نام مجھے تو نہ معلوم ہوا, لیکن ان کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں معین الدین میرا نام عثمان ہارونی ہے. تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھ کو تمہارا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ معین الدین آؤ, تمہیں بھی وہ منزل ملنے والی ہے. سرکار خواجہ غریب نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. مورخین بیان کرتے ہیں کہ 14 برس یا 20 برس تک سرکار غریب نواز اپنے مرشد کی خدمت میں رہے. جب 20 برس کا عرصہ گزر گیا تو ایک روز پیر نے فرمایا معین الدین آؤ میرے قریب آؤ. سرکار خواجہ غریب نواز قریب گئے تو آپ فرماتے ہیں معین الدین تم 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو. سرکار غریب نواز نے 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا. آپ نے فرمایا اب تم اپنی آنکھوں کو بند کرو, نیچے دیکھو کیا دیکھ رہے ہو. انہوں نے عرض کیا اے میرے آقا میں تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں. ذرا دیکھنے کا انداز ملاحظہ فرمائیے. لوگ آنکھیں کھول کر کے دیکھا کرتے ہیں مگر اللہ والے آنکھیں بند کر کے دیکھا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا بیٹا پھر 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو. پھر آپ نے 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا. آپ نے فرمایا اب دیکھو اوپر دیکھو کیا دیکھ رہے ہو. عرض کرتے ہیں سرکار میں عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں, لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں, میری نگاہ کے سامنے لوح محفوظ ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹا پھر 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو. انہوں نے پھر 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کی. فرمایا تم اپنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. آپ نے دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھا. کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے آقا میں ساری کائنات دیکھ رہا ہوں, سب کچھ اپنے دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اے معین الدین اب تم کو میں نے خدا تک پہنچا دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 انگلیوں کے بیچ میں غریب نواز کو ساری دنیا کیوں دکھائی گئی؟ یہ بتا دیا گیا غریب نواز جو اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا اس کے لیے ایسے ہی ہو جاتی ہے. وہ اپنی انگلی پر دنیا کو نچایا کرے گا, وہ اپنی انگلی پر دنیا کو چلایا کرے گا. غریب نواز تمہارا قرب اتنا ہو گیا مضبوط اور تم اس منزل میں پہنچ گئے ہو. سرکار غریب نواز کو خرقہ خلافت عطا ہوتی ہے, ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مگر اب بات ہے آنے کی ہندوستان میں.
सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में कदम रखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का माहौल जरा सा मुलाहिजा कीजिए। उस वक्त हिंदुस्तान का माहौल क्या था? हिंदुस्तान का माहौल ये था कि राजा पथौरा जो अपनी शहंशाहियत और ताकत की बुनियाद पर राजा बना हुआ था और न जाने किस किस जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद पर हुकूमत कर रहा था। शहाबुद्दीन गौरी की मुठभेड़ हुई थी। शहाबुद्दीन गौरी को बड़ी हजीम शिकस्त हुई थी। शहाबुद्दीन गौरी हार गए थे। 19 दिन का अरसा गुजरा था कि शहाबुद्दीन गौरी परेशान नजर आ रहे हैं। कौन सी ऐसी ताकत इस्तेमाल करूं कि भारत की सरजमीन पर मैं कामयाब हो जाऊं, मगर कामयाबी का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इधर सरकार गरीब नवाज जब कोहिस्तानी इलाकों को पार करते हुए अजमेर शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे तो गरीब नवाज ठहर गए। गरीब नवाज का ठहरना था कि राजा के आदमियों ने जाकर के खबर दी कि एक फकीर आया है, उसके साथ चंद मुसलमान हैं। वो फकीर फला जगह बैठा हुआ है। पूछा राजा पथौरा ने, कहाँ फकीर बैठा है? कहा जहाँ हमारे ऊंट बैठते हैं। कहा जाओ उस फकीर को वहां से हटा दो, वो ऊंटों के बैठने की जगह है, तुम यहाँ न रहो। आकर के गरीब नवाज को इत्तला दी जाती है, आप यहाँ से हट जाएं, आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं है। आपने फरमाया क्यों? ये तो जमीन है, यहाँ पानी है, पानी की सहूलत की बुनियाद पर मैं यहाँ बैठ गया हूँ। कहा नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। कहा क्यों? यार राजा के ऊंट बैठते हैं। आपको जोश आया, महबूबियत की कुव्वत को इस्तेमाल किया और आपने फरमाया ठीक है, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं तो ऊंट ही बैठे रहेंगे। आप उठ करके खड़े हो गए और अपने तमाम साथियों को लेकर के दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। अब जब राजा के ऊंट आए, बैठाए गए, सवेरा हो रहा है, ऊंटों को उठाया जा रहा है, कोई ऊंट नहीं उठ रहा है, सारे ऊंट बैठे हुए हैं। बड़ी मेहनत और मशक्कत की जा रही है मगर ऊंट जंबिश नहीं कर रहे हैं, वो कतान दुम नहीं हिला रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, न उनका सर हिल रहा है। एकदम बिल्कुल मुंजमिद हो गए। ये लोग सब भागे गए राजा पथौरा के पास। कहा गजब हो गया, जिस फकीर को हम लोगों ने भगाया था और कहा था कि वहां राजा के ऊंट बैठते हैं, फकीर जाते जाते ये कह गया था कि जाओ राजा के ऊंट बैठते हैं तो ऊंट ही बैठे रहेंगे। ए राजा, फकीर की दुआ लग गई है, ऊंट हमारे नहीं उठ रहे हैं। राजा ने कहा जाओ सबके सब माफी मांगो, फकीर माफ कर दिया करते हैं, अगर वो सही फकीर है तो माफ कर देंगे। चुनांचे सारे लोग भाग करके आए, आपका चेहरा देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे, हम नौकर हैं, हम राजा की बात मानने के लिए मजबूर थे, हमारी रोजी रोटी लगी हुई थी, हमें माफ कर दो और न हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, हमारे ऊंट उठ जाएं। तो सुन लो प्यारे, अल्लाह का वली सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर उसकी बारगाह में कोई भीगी पलक वाला पहुंच जाए, आंसू के कतरात बह रहे हों, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो माफ कर दिया करता है। अल्लाह का वली अपने जिस्म के जख्मों को नहीं देख करके उतनी तकलीफ उठाता है जितनी तकलीफ उसको दूसरे की पलक पर आंसू के कतरे हों तो तकलीफ होती है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब वो आए अपने ऊंटों को उठा रहे हैं तो ऊंट उठते चले जा रहे हैं, ऊंट भागते चले आ रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ठहरे हुए हैं अना सागर पर, पानी जरूरत के लिए लाया जाता है। आपकी तबलीग फैल रही है, आपके करीब खल्के खुदा हो रही है। राजा को लोगों ने इत्तला दी कि अगर इसी तरह से उस फकीर का जम घटा रहा तो तुम्हें सल्तनत से हाथ धो देना पड़ेगा। लोग तो उसके धर्म को कबूल करते चले जा रहे हैं। राजा को फिर गुरूर आया। राजा ने कहा जाओ उसको वहां से हटा दो और अगर ना हटे तो पानी बंद कर दो, खतान पानी ना लेने दिया जाए। चुनान से पहरा लग गया पानी के लिए। सरकार गरीब नवाज के एक मुसलमान हुए थे जिनका शादी देव नाम था, बाद में उनका नाम अब्दुल्लाह पड़ा। वो सरकार गरीब नवाज की खिदमत में रहते थे, राजपूत था। उसने अर्ज किया हुजूर मैं जा रहा हूँ पानी लाने के लिए, जाओ अब्दुल्ला पानी ले आओ। अब्दुल्ला बढ़े पानी लेने के लिए तो रोक दिया पहरेदारों ने, शादी देव हम तुम्हें पानी नहीं लेने देंगे। कहा अब मुझे शादी देव न कहो, अब मैं अब्दुल्लाह हूँ, मैंने गरीब नवाज के खुदा का कलमा पढ़ लिया है, रसूलुल्लाह का, अब मैं उनके खुदा का सही बंदा हो गया हूँ, मैं उनके खुदा की इबादत करता हूँ। अब मैं तुम में नहीं हूँ जो मुझे पुराने नाम से याद किया जाए। इतनी बातचीत हुई कि कुछ हाथापाई हो गई, अब्दुल्ला की उंगली में चोट लग गई, खून बह गया अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला खाली प्याला ला करके अपने मुर्शिद के सामने रख देते हैं। गरीब नवाज की निगाह उठती, अब्दुल्ला क्या बात है हुजूर, पानी न लेने दिया? किसने नहीं लेने दिया? पहरेदारों ने
नहीं लेने दिया, तब तक निगाह पड़ गई उंगली पर। अब्दुल्ला तुम्हारी उंगली से खून कैसे बह रहा है? आंखों में आंसू डबडबा आए। मेरे आका, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि पानी ले लूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे पानी नहीं लेने दिया। हाथापाई हो गई, मेरी उंगली टूट गई है, खून निकल रहा है। इतना सुनना और देखना था, गरीब नवाज को जोश आया। आप फरमाते हैं, मैंने राजा पथोरा और उसके सारे लश्करियों को शहाबुद्दीन के हवाला कर दिया। शहाबुद्दीन गिरफ्तार कर, शहाबुद्दीन गिरफ्तार कर, शहाबुद्दीन गिरफ्तार कर। गरीब नवाज अजमेर के इलाका में इरशाद फरमा रहे हैं, 19 दिन का अरसा गुजरा था पथोरा की लड़ाई से शहाबुद्दीन को गए हुए। शहाबुद्दीन लेटा हुआ है, ख्वाब देख रहा है कि एक बुजुर्ग हमें कह रहे हैं कि राजा पथोरा और उसके लश्करियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बेदार हुआ शहाबुद्दीन, उसने अपने फौज के सरदार को बुलाया, जनरल को हुक्म दे दिया फौज तैयार की जाए। सुल्तान कहां के लिए? हिंदुस्तान के लिए। सुल्तान अभी चंद दिन हुए हैं, फौज भाग करके आई है, अभी फौज के जिस्म से गर्द गुबार भी नहीं हटे हैं, अभी कपड़े भी जिस्मों से नहीं उतरे हैं, फिर चढ़ाई की जाए, हजीमत उठानी पड़ेगी। शहाबुद्दीन ने कहा, नहीं नहीं, मैं एक दिन के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं हूं, पूरे लश्करियों को ताजा दम कर दो और इसी वक्त भारत की तरफ रुख कर लो। सारे लश्करी तैयार हो गए। समझ में बात नहीं जा रही है कि शहंशाह ने इतनी जल्दी फैसला क्यों कर लिया है, सुल्तान ने इतने जल्दी कानून क्यों सुना दिया है। सारे फौजी तैयार हो गए और जब तैयार होकर के राजा पथोरा के मुकाबले में आते हैं तो जानते हो प्यारे, उठा करके तारीख पढ़ो और अपने माजी को सोच करके मौजूदा हालात पर निगाहें रखते हुए मातम करो कि 3,70,000 फौजियों को राजा पथोरा ने तरावड़ी के मैदान में जमा किया था। ये आखिरी जंग हो रही थी, ये फैसला कुल जंग लड़ी गई है तरावड़ी के मैदान में। 3,70,000 दुश्मन मुकाबिल में हैं और 1,40,000 फौज लेकर के शहाबुद्दीन मैदान जंग में उतरा है। जब 1,40,000 फौजियों को लेकर के शहाबुद्दीन मैदान जंग में उतरा, फौज का जायजा लिया गया तो 3,000 लड़ाकू हाथी थे राजा पथोरा की जानिब से जो आगे कर दिए गए थे। मगर कुर्बान जाओ, अल्लाह ताला उसकी रूह को आला इल्लीन में सुकून अता फरमाए, जिसको तारीख हम्माद बिन खल्दून के नाम से याद करती है। एक नौजवान था सिपह सालार जिसका नाम हम्माद बिन खल्दून है। हम्माद बिन खल्दून ने कहा सुल्तान शहाबुद्दीन से कि मुझे 12,000 नौजवान दे दिए जाएं, जिन नौजवानों को मैं मांगूं। इख्तियार दे दिया सुल्तान ने, तुम 12,000 नौजवानों को छांट लो। 12,000 नौजवानों को मुंतखब कर लिया हम्माद इब्न खल्दून ने और हम्माद इब्न खल्दून ने कहा था कि हम 12,000 मैदान ने तराबड़ी में जंग का नक्शा बदलेंगे और बता देंगे कि कुव्वत ईमानी किसे कहते हैं। हम्माद बिन खल्दून ने कहा, ये 12,000 नौजवानों तुम्हें 3,70,000 फौजियों से टकराना है, बताओ टक्कर लोगे कि नहीं। सबों ने हाथ उठा करके कहा था, हम अपने खून का आखिरी कतरा पेश कर देंगे, हम मैदान जंग से भागेंगे नहीं। तो सुल्तान के सामने हम्माद बिन खल्दून ने कहा था, मैं तुम्हें एक दस्तूर बता रहा हूं कि तुम्हारी जबान पर रसूलुल्लाह पर दरूद होना चाहिए, हाथ में तलवार होनी चाहिए। इस कुव्वत को लेकर के तुम मैदान जंग में आगे बढ़ो, कामयाब हो जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं ए बहराइच के मुसलमानों, कल जब हम अपने मुखालिफ के मुकाबिल में जा रहे थे तो लब पर दरूद सलाम था, हाथ में हमारे तलवारें थी, हम कामयाब हो रहे थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सजदा कर रहे हो कि नहीं, मस्जिदों की तरफ कदम उठ रहे हैं कि नहीं, कुरान की तिलावत हो रही है कि नहीं। हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने राणा सांगा से मुकाबला किया था तो 13,000 को लेकर के उसने मुकाबला किया, मुकाबले में शिकस्त हो गई। फिर जब दोबारा मुकाबला किया है, फिर शिकस्त का मुंह देखना पड़ा तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा था, ऐसा लग रहा है कि हमें नुसरत इलाही नहीं हासिल हो रही है और नुसरत इलाही हमें ना मिलेगी जब तक हम अपने तमाम गुनाहों से ताइब न हो जाएं। तो सबों ने गुनाहों से तौबा की थी, चांदी के बर्तनों को निकाल दो, अगर कोई शराब पी रहा है तो तौबा कर लो। जोहर के वक्त सबों ने तौबा की थी और असर और जोहर के दरमियान मैदान जंग में तलवारें चमकी थी। असर का वक्त नहीं लगा था कि मैदान जंग में राणा सांगा की फौज को भगा दिया था। वो कैसा जौहर था, कैसी कुव्वत थी, आपको कहना पड़ेगा कि जब गुनाहों के खिलाफ हमने जंग की है और हम गुनाहों से दूर होकर के अपने रब को, अपने आका को याद करके मैदान जंग में आगे बढ़े हैं, तो हमारे लिए हर तरफ से आवाज आती रही, जिसको डॉक्टर इकबाल ने कहा है। डॉक्टर इकबाल ने जब बारगाहे एसडी में शिकायतें अर्ज की, माज़अल्लाह शिकायती जुमले अशार में बहुत पाए गए, तो रब की तरफ से डॉक्टर इकबाल को जवाब मिल रहा है। डॉक्टर इकबाल को जो जवाब रब की तरफ से मिल रहा है, डॉक्टर इकबाल ने खुद ही अपने कलम से नोट किया है। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं, देखो जब मैंने रब की बारगाह में सब शिकवा किया, ए मेरे मौला तलवार हम चला रहे हैं, मेरे मौला सजदा हम कर रहे हैं, मेरे मौला कुरान की तिलावत हम कर रहे हैं, बहारें हमारे लिए होनी चाहिए, इख्तिदार हमारे लिए होना चाहिए,
चाहिए, सारी तरक्कियां हमारे लिए होनी चाहिए, मगर जो इस्लाम के दुश्मन हैं वही तरक्की पजीर दिखाई दे रहे हैं। तो रब की तरफ से आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह हो कलम तेरे हैं, तुम मेरे महबूब से वफादारी निभाते चलो तो तुम्हारे लिए लौह महफूज है, तुम्हारे लिए लौह कलम है, तुम्हारे लिए इख्तिदार है, तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे, हम्माद बिन खलदून ने 12,000 लश्करियों के जरिया से 3,70,000 फौजियों को तितिर बितिर कर दिया था और कामयाब हो गए थे वो लोग। उनके जौहर, उनके कुव्वत को देखो। शहाबुद्दीन गौरी जब कामयाब होकर के तरावड़ी के मैदान में पहाड़ों से आगे बढ़ते हुए जब बढ़े अजमेर शरीफ की तरफ तो मगरिब का वक्त हो गया था। एक पहाड़ के खोह से एक आवाज आ रही है अजान की। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा पढ़ करके देखो, हमारे फौजी इधर तो नहीं आ गए हैं कुछ, लेकिन जब फौज का एक दस्ता बढ़ा तो आकर के बयान दिया कि ए सुल्तान, फौज का दस्ता नहीं है, वो एक फकीर है, उसके साथ चंद मुसलमान हैं, नमाज पढ़ रहे हैं मगरिब की। शहाबुद्दीन ने कहा चलो हम भी उसी में शामिल होकर के नमाज अदा करेंगे। और जब शहाबुद्दीन गौरी आगे बढ़े हैं तो शहाबुद्दीन गौरी ने देखा ये तो वही बुजुर्ग हैं जो मुझे ख्वाब में कह रहे थे कि शहाबुद्दीन पृथ्वी राजा को पकड़ो, पथोरा की फौज को गिरफ्तार करो। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने अपने सर को गरीब नवाज के कदम पर रखा और अर्ज किया सरकार मैं वही शहाबुद्दीन हूं जिसके कब्जा में आपने पथोरा को दिया है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। उसकी लश्कर को जिसके कब्जा में दिया है उस भारत को आपसे मांग रहा हूं, ए सुल्तान आप सुल्तान हो तो 800 बरस तक 888 बरस तक मैं अर्ज करता हूं प्यारे, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपने हुकूमत की थी। शहाबुद्दीन के बारे में बताया जाता है फिर वो सरकार गरीब नवाज के हाथ पर बैठ हो गए। सरकार गरीब नवाज की वो अजीम शख्सियत है। सरकार गरीब नवाज को समझने के लिए आपको गरीब नवाज की जिंदगी का मुताला करना पड़ेगा। उनको गरीब नवाज क्यों कहा जा रहा है? सारी दुनिया गरीब नवाज कह रही है, हम भी गरीब नवाज कह रहे हैं, मुखालिफ भी कह रहा है, मवासिक भी कह रहे हैं, तारीख भी गरीब नवाज के नाम से लिखी जा रही है। आखिर किसी का कोई नाम पड़ता है, किसी का नाम कुछ पड़ा तो किसी ने रखा होगा। गरीब नवाज इनका नाम किसने रखा? तारीख बताई जा रही है कि गरीब नवाज ईदगाह की तरफ जा रहे थे, सर्दी सख्त पड़ रही थी, एक नाबीना रास्ते में खड़े होकर के रो रहा था, है कोई जो मुझे कपड़ा दे दे, मुझे ईदगाह की तरफ लेकर के चले, है कोई जो हमारी मदद करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ए मुसलमानों, क्या नाबीनाओं की मदद आज आप कर रहे हो जो मुस्तहिक हैं कि नहीं? क्या भिखारियों की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उनकी मदद कर रहे हो कि नहीं? अपनी जिंदगी का दस्तूर कब बदलोगे? कुरान की आयत पर तुम्हारा अमल होगा, वो अम्मत साइला फला तनहार, साइल को झिड़को रही। गरीब नवाज ने देखा नाबीना रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आपने हाथ पकड़ लिया। कहां चलना चाहते हो? आपको मैं ले चलूंगा जहां कहो। आज सारे लोग ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, मेरी गुर्बत पर कोई तरस खाने वाला नहीं है जो मुझे ईदगाह ले चले, मुझे कपड़ा पहना है। गरीब नवाज ने अपना कपड़ा उतार दिया और उतारने के बाद दे दिया और नाबीना का हाथ पकड़ कर लेकर चले जा रहे हैं। जब ईदगाह में पहुंचे गरीब नवाज तो लोगों की तरफ से आवाज आ रही है, देखो गरीब नवाज आ रहे हैं, वो देखो गरीब नवाज आ रहे हैं। उसी तरफ से आपका नाम उसी दिन से गरीब नवाज पड़ गया है और आपको गरीब नवाज कहा जा रहा है। अंधे गरीब को गरीब नवाज ने नवाज दिया तो सारी दुनिया गरीब नवाज कह रही है। अब सिर्फ अंधा ही नहीं नवाजा जा रहा है, अमीन जुआड़ी जैसा जुआड़ी भी नवाजा जा रहा है, कोई साइल जाए वो नवाजा जा रहा है। ये अजमेर शरीफ की तकरीर है, आओ देखो गरीब नवाज ने किस किस तरह से नमाज दिया है। इस पर तो मैं बहस नहीं करूंगा कि अल्लाह वाले क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, एक अलग बहस हो जाएगी। मैं ये बताता हुआ चलो कि गरीब नवाज की शख्सियत समझो। गरीब नवाज की वो शख्सियत है कि एक खातून थी बेचारी, उसकी कोख नहीं खुल रही थी, उसकी गोद में कोई बच्चा नहीं था। उसने देखा कि पूरा काफिला अजमेर की तरफ जा रहा है। किसी औरत से उसने पूछ लिया, ये बहन ये तो बताओ अजमेर क्यों जा रही हो? उसने कहा ये मेरी गोद में जो तुम खेलता हुआ लाल देख रही हो ये अजमेर के राजा ने मुझे अता किया है। उसने कहा मैं भी चलना चाहती हूँ। कहा चलो, काफिला के साथ वो भी जाती है।
अजमेर की सरजमीन पर पहुंची, अपने अंदाज में भीख मांग लिया। ये गरीब नवाज, मैं आपकी बारगाह में आई हूं, मैंने सुना है कि आप गरीब हैं, नवाज हैं, तो सरकार मुझे नवाज दीजिए, मेरी गोद खाली न रह जाए। ताना सहते सहते परेशान हो गई हूँ, मुझे बांझ कहा जा रहा है। मेरे आका, मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ, मगर बे औलाद ना छोड़िए। तो दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वो औरत रो रो करके अर्ज कर रही है, जब वापस आई तो 9 महीने पूरे हुए, उसके घर एक लाडला हुआ, एक चांद सा बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हसीन जमील बच्चा है। अब उस औरत को फिक्र लाई थी कि जिस गरीब नमाज के तरफ ये भीख पाई हूँ, हाजिरी जरूर की जाए। चुनांचे फिर काफिला तैयार हुआ अजमेर शरीफ आने के लिए। वो खातून काफिला वालों के साथ फिर आ रही है, पहले आई थी तो भीख मांगी थी, आज उस भीख का फल देखते हुए जा रही है। काफिला रवा दवा चला गया, जब अजमेर पहुंचा लोगों ने हाजिरी दी। ये जोश खरोश में आगे बढ़ी, भीड़ बहुत थी। इसके हाथ से छोटा सा बच्चा था, छूट करके जमीन पर गिरा, जायरीन के कदम पड़े, बच्चा जान जाने आफरी के सपुर्द कर गया, उसकी पिछली टूट गई। अब तमाम लोग दौड़े, जब बच्चे को उठा रहे हैं तो चंद मिनट के बाद बच्चे की सांस बंद हो जाती है। औरत की गोद में बच्चे को दिया जा रहा है, औरत गिर पड़ी रोते रोते। काफिला वालों ने संभाला, उसने देखा कि मेरा बच्चा तो अब जाया ही हो चुका है। लोगों की आंखें डबडबा गई, रात की तारीकी है। काफिला वालों ने कहा, इस बच्चे को महफूज रखा जाए, सवेरे जगह तलाश करके फिर इसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। रात बढ़ती चली जा रही है, मगर औरत पागल सी हो गई है। उसी दीवानगी के आलम में उठी, उसने बच्चे को झटक करके उठा लिया अपनी गोद में और उठा करके गरीब नवाज की चौखट की तरफ बढ़ी। रात का काफी हिस्सा गुजर गया था, पब्लिक कुछ कम हो गई थी। कुछ लोग अपनी आहें चुपके चुपके गरीब नवाज की बारगाह में पेश कर रहे थे, कुछ सरगोशियां हो रही थी। औरत पहुंची, उसने दरवाजे पर सर रख करके अर्ज किया, गरीब नवाज, जब तक लाल मिलाला था तब तक तो ये दुश्वारी थी, अगर जिंदगी इतनी ही थी, ले ही लेना था तो दिया क्यों था। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। अगर सवेरे सवेरे मेरा बच्चा अजमेर के कब्रिस्तान में दफन हुआ तो ये गरीब नवाज एक जनाजे की जगह और देनी पड़ेगी। दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, रो रही है। और गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करती चली जा रही है। गरीब नवाज का फैजान जारी होता है। देखो, थोड़ी देर के बाद बच्चे के जिस्म में हरकत पैदा हुई, बच्चा आंखें खोल देता है, मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया और अपने अपनी गोद में ले लिया और दीवानगी के आलम में भागी अपने काफिला की तरफ, जगाया सोते ही औरतों मर्दों को। ये देखो मेरे बच्चे को गरीब नवाज ने जिंदा कर दिया, ये देखो मेरा बच्चा, तुम लोग कह रहे थे मर गया है, हड्डी टूट गई है, मगर मेरा बच्चा सही सालिम है। ये देखो मुस्कुरा रहा है, ये देखो दूध पीने लगा है। लोग देख करके ताज्जुब करने लगे, मगर कुछ लोग ताज्जुब करते थे, कुछ कहते थे ताज्जुब की बात नहीं है, ये तो गरीब नवाज का आस्ताना ही है। जिंदगी तो यहीं से मिल रही है, तो यही तो मिल रही हैं। अकीदत के फूल निछावर करो, तुम्हें इनके दरबार में मिलेगा क्या नहीं। आओ जरा देखो, ये गरीब नवाज का दरबार है। गरीब नवाज के दरबार में जाने वाला पाता क्या नहीं है। गरीब नवाज के दरबार में फरियाद करने वाले की फरियाद रायगा नहीं जाती है। गरीब नवाज के दरबार में अगर अपने गुर्बत की भीख मांगने के लिए जाओ तो वो गरीब नवाज है, नाम का पासो लिहाज जरूर करना पड़ेगा। अगर किसी आदमी को कह दो तुम बहुत बड़े राजा हो, भिखारी हो, तो चिढ़ जाएगा। अगर भिखारी को कह दो तुम बहुत बड़े राजा हो, हमें इनाम दे दो, तो चिढ़ जाएगा। अगर जाहिल को कह दो तुम आलिम हो तो जाहिल चिढ़ेगा, आलिम को कह दो जाहिल हो तो चिढ़ेगा। मैं कहता हूँ बिला वजह गरीब नवाज का नाम गरीब नवाज नहीं है, बिला सबब उन्हें गरीब नवाज नहीं कहा जा रहा है। ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान और तमाम बैरून मुल्क के मुफक्किरीन ये बेवकूफ नहीं है जो गरीब नवाज को गरीब नवाज कह रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। उन्हें गरीब नवाज किस बुनियाद पर कहा जा रहा है और तारीख का वरक उलट रहा हो ताकि ईमान ताजा हो जाए। गरीब नवाज कौन है, किस हैसियत से गरीब नवाज है, आपको कामयाब किया है, यही गरीब नवाज हैं। गरीब नवाज जब अजमेर शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे तो एक जगह देखा गया, आपके 40 साथी थे। साथियों ने अर्ज किया, हुजूर हम लोग आज देख करके आए हैं एक जगह, यहाँ से कुछ मील की दूरी पर है, जहाँ बहुत काफी भीड़ लगी है। उस भीड़ में 3 ऐसे महात्मा हैं जो अपने सर को जमीन के अंदर रखे हुए हैं, ऊपर से उनके आधे जिस्म पर मट्टी चला दी गई है। आज 15 दिन का अरसा गुजर गया, वो सब के सब उसने जिंदा हैं, उनके पैर ऊपर हिल रहे हैं। और जब 15 दिन का अरसा गुजरा तो आज पता चला है कि असर के वक्त वो सब अपना सर बाहर निकालेंगे और वो लोग ये ऐलान करेंगे कि जिसको यह मर्तबा हासिल करना हो वो अगिन माता की पूजा करे। आग जल रही है, लोग वहां पूजा भी कर रहे हैं। सरकार गरीब नवाज अपने मुरीदों को लेकर के बढ़े और जाकर के पहुंचे तो आपने देखा, रावी का बयान है, मौरिख लिखता है कि करीब 300 राजपूत वहां पर मौजूद थे। बड़ा मेला लगा था, भीड़ भाड़ लगी थी। गरीब नवाज पहुंचे, आपने
अल्लाह के बंदों को हिदायत की। हिदायत करने के बाद जब वो लोग अपना सर निकाले तो आपने फरमाया कि तुम लोग कब से अपने सर को इसमें डाले हुए थे? हम लोगों ने कहा बाबा हम 15 दिन से जमीन के अंदर पड़े हुए थे। कहा तुम 15 दिन से जमीन के अंदर पड़े हुए थे? हाँ। आपने फरमाया लेकिन आग की पूजा न करो, खुदा को मानो, कलमा पढ़ो, एक खुदा के हो जाओ। सरकार गरीब नवाज ने तमाम दलीलें दे दी। दलील दे करके वापस होने लगे। जब आप थोड़ी दूर चले तो मुरीद आगे बढ़ करके दामन को थाम लिया। आपने कहा क्यों मुझे रोक रहे हो? मुरीद ने कहा हुजूर बहुत गलत तारीख लिखी जाएगी। आपने अकली दलाइल से तो उन सबको मजबूर कर दिया वो जवाब ना दे सके, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखी जाएगी कि मोइनुद्दीन गरीब नवाज आए थे और उन्होंने यहाँ इस्लाम की हुज्जत पेश की थी, मगर किसी ने कलमा नहीं पढ़ा था, उनकी हुज्जत से कोई फायदा नहीं हुआ था। ए मेरे सरकार, तारीख आपकी इस तरह से मुरतब की जाएगी। इतना सुनना था कि गरीब नवाज ने जोश में आकर के महबूबियत की कुव्वत को इस्तेमाल किया, आगे बढ़े और जाकर के कहा खबरदार तुम लोग आग की पूजा मत करो, इनके कहने पर अपनी आखिरत बर्बाद ना करो, आग तुम्हें जला डालेगी, छोड़ेगी नहीं। मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ उस खुदा को मानो, तुम्हें आग ना जलाएगी। कहा नहीं जलाएगी? कहा बिल्कुल नहीं जलाएगी। गरीब नवाज से उन लोगों ने कहा कैसे नहीं जलाएगी? सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं अरे आग तो आग है, जिस खड़ाऊं को मैं पहने हुए हूँ इस आग की हिम्मत नहीं है जो मेरी खड़ाऊं जला दे। उन लोगों ने कहा ये समझ में बात नहीं आ रही है कि लकड़ी को आग में डालिए और आग लकड़ी को न जलाए। कहा देख लकड़ी को आग नहीं जलाएगी। आपने अपने मुरीद को दिया, ले मेरी खड़ाऊं आग में डाल दे। आग जल रही थी जिसकी वो इबादत कर रहे थे, उस जलती हुई आग में गरीब नवाज की खड़ाऊं डाल दी गई। अब सरकार गरीब नवाज अपने मुरीद से फरमाते हैं, गरीब नवाज अपने मुरीद से फरमाते हैं तू ही आग में चला भी जा और मेरी खड़ाऊं निकाल ला। वो मुरीद ये नहीं सोचता है सरकार में जल जाऊंगा कि नहीं, भड़कते हुए शोले हैं, इस भड़कती हुई आग के अंदर में जाऊं तो जलूंगा कि नहीं। मुर्शिद ने फरमाया जा खड़ाऊं को निकाल ला। मुरीद आग में घुस जाता है और घुस करके खड़ाऊं निकाल लाता है, खड़ाऊं रखी जा रही है। आपने फरमाया देखो मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जिसने मुझे वो ताकत दी है कि ना मेरी खड़ाऊं को आग जला सकी है और ना मेरा मुरीद जो खड़ाऊं लेने गया उसे आग जला सकी है। फौरन उन 300 राजपूतों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा, वो सबके सब दाखिले इस्लाम हो गए। डॉक्टर अकबाल का शेर इसीलिए है न किताबों से न कालिज के डर से है पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिस गरीब नवाज से लकड़ी की निस्बत हो जाए तो उसे आग नहीं जला रही है, तो जिन मोमिनों की निस्बत रसूल कायनात की तरफ है उन्हें आग कैसे जलाएगी? वली अल्लाह से अकीदत व मोहब्बत हो जाए तो आदमी दौड़ता हुआ आग में जा रहा है, नहीं जल रहा है। तो जिस मर्द मोमिन को रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो जाए आग उसे कैसे जला सकती है? जब इस पार का ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? गरीब नवाज की शख्सियत समझते हुए चलो। ये सरकार गरीब नवाज हैं। सरकार गरीब नवाज ने जब अना सागर को खुश्क किया था तो 1300 राजपूतों ने उस दिन इस्लाम का कलमा पढ़ा था, वो सबके सब इस्लाम कबूल कर लिए थे। गरीब नवाज की बहुत सारी करामतें हैं, करामतों का सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ ज़हन फिक्र में ये बात आपको मैं डालना चाहता हूँ कि गरीब नवाज की अकीदत और मोहब्बत बिना वजह नहीं है। नमाज की तालीम रवा दमा सारे लोग इस तरह से नहीं चले जा रहे हैं, मगर एक जुमला मुसलमानों में और अर्ज करता चलूंगा। गरीब नवाज की बारगाह में जो मांगने का तरीका है क्या इसी तौर तरीके से मांगा जा रहा है? क्या गरीब नवाज की बारगाह में अपनी फरियाद पेश करने का जो ढंग है इसी ढंग से पेश किया जा रहा है? नहीं। आज जब जायरों पर निगाह डालिए तो इतने बेवकूफ किस्म के ये जायरीन हैं, औरतों को साथ में लेकर के भाग रहे हैं, जा रहे हैं, न जाने कितनी गलत हरकतें हो रही हैं और गरीब नवाज का आस्ताना बदनाम किया जा रहा है। लिहाजा मैं उन नौजवानों से भी कहूंगा जो तरीका मज़ारों पर जाने का है उस तरह से जाओ, जो दस्तूर गरीब नवाज की बारगाह में मांगने का है उस तरह से मांगो। अगर कोई बादशाह की बारगाह में उसकी बेइज्जती करते हुए, गुस्ताखी करते हुए सवाल करेगा तो बजाय वहां से कुछ लेने के आताब में आ जाएगा। ये गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हैं, इन्हें सुल्तानुल हिंद क्यों कहा जा रहा है? आखिर और किसी वली को तो सुल्तानुल हिंद नहीं कहा गया। बहुत सारे औलिया किराम हिंदुस्तान में हैं और बहुत सारे वलियों के तमाम अलकाबात हैं, मगर सुल्तानुल हिंद सिर्फ इन्हीं को कहा जा रहा है। गरीब नवाज को आखिर क्यों सुल्तानुल हिंद कहा गया? इसको सुन लो, मैं आज तारीख उलट रहा हूँ। तुमने समझा होगा कि गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद कलमा पढ़ने वाले ने पहले कहा नहीं, तुमने समझा होगा उनका दीवाना कहा है नहीं, तुमने समझा होगा कि बरेली से फतवा निकला है नहीं, ना तो दारुल उलूम देवबंद के लोग बोले उन्हें पहले सुल्तानुल हिंद, ना बरेली वाले बोले हैं। सुल्तानुल हिंद किसने कहा है वो तारीख सुना। एक अंग्रेज जर्नल है
نے دیکھا کہ ہمارے وہاں اگر کوئی کسی چیز کا اعلان کرتا ہے تو پمفلٹ شائع کیا جاتا ہے، لوگوں کی اطلاع دی جاتی ہے، تب اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ مگر یہ ایک ایسا دربار ہے کہ سال میں یہاں ایسی بھیڑ ہو رہی ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں گول بنا کر کے، نہ کوئی اطلاع دینے والا ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے۔ سامنے ایک قبر دیکھ رہا ہوں، اس انگریز نے کہا تھا کہ میں نے ہندوستان میں دو چیزیں دیکھی، ان میں سے میں نے یہ دیکھا کہ ایک پہاڑی علاقے میں ایک قبر دکھائی دے رہی ہے، جس قبر کی ان کا قبر میں رہنے والے کی حکومت ہندوستان پر آج بھی ہے، کہ گوشے گوشے سے لوگ چلے آ رہے ہیں، وہ سلطان الہند معلوم ہوتے ہیں۔ ایسی قبر ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ یہ پہلا جملہ اس انگریز نے کہا تھا، آج ساری دنیا سلطان الہند کہہ رہی ہے، اور صحیح ہے کہ غریب نواز ہندوستان کے سلطان ہیں، بلا غریب نواز سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے بتاؤں پیارے، آپ ہم سے کہہ سکتے ہو سبحانی صاحب، جب غریب نواز سلطان الہند ہیں تو مسجد کیوں گرائی جا رہی ہے؟ غریب نواز سلطان الہند ہیں تو مسلمانوں کے مکان کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ غریب نواز سلطان الہند ہیں تو عورتیں بیوہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ بچوں کو یتیم کیوں کیا جا رہا ہے؟ خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ دکانیں کیوں پھونکی جا رہی ہیں؟ ملک برباد کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں عرض کرتا چلوں گا پیارے، ان کا فیض و کرم تو آج بھی جاری ساری ہے، مگر یہ ہماری اور آپ کی بدعملیاں ہیں۔ باپ کے پاس لاکھ جائیداد ہو، لیکن اگر بیٹا شرابیوں کے ساتھ گھومتا ہوا دکھائی دے تو جو شراب خانے کا ماحول رہے گا وہی اس کو ملے گا، باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا۔ باپ کے پاس لاکھ جائیداد ہے، اگر بچہ چوروں کے ساتھ گھومے تو جو چوروں کا ماحول رہے گا وہی اس کو ملے گا، باپ کی جائیداد سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر وہ ڈکیتوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو جو ڈکیتوں کے لیے قانون ہے وہی اس پر بھی نافذ ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں آ رہی ہیں، غریب نواز کا فیض تلاش رہے ہو، رات دن جھوٹ بول رہے ہو اور غریب نواز کی کرامت دیکھنا چاہتے ہو، حقوق کی پامالی کر رہے ہو اور غریب نواز کے پوز و برکات کو دیکھنا چاہتے ہو۔ مسجدیں سونی پڑی ہوئی ہیں، گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، نماز کے وقتوں کو ضائع کر رہے ہو اور غریب نواز کا فیضان دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہیں فیضان اس طرح سے نہ ملیں گے، تمہیں ٹی ویوں کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی، تمہیں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھنا پڑے گا، تمہیں اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت میں لانی پڑے گی، تمہیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ جب اس انداز سے چلو گے تو تمہارے لیے آواز آئے گی کہ فطرتیں آزاد ہوں اور قدرتیں پھر ساتھ ہوں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ مسلم بن جائے کوئی۔ غریب نواز کا طریقہ تو لے لو، باپ کی جائیداد لینے کے لیے باپ کا صحیح بیٹا بننا پڑے گا، غریب نواز کا فیضان لینے کے لیے غریب نواز کا دیوانہ بننا پڑے گا۔ شراب خانوں میں بیٹھ کر کے حکومت کو نہ سوچو، جھوٹ بولتے ہوئے اقتدار کا ماحول نہ لاؤ۔ مسلمان جھوٹ بول کر کے اقتدار نہ پائے گا، شراب پی کر کے اقتدار نہ پائے گا۔ جب مسلمان شراب کی بھٹیوں کو آگ لگاتا دکھائی دے رہا تھا، جب مسلمان تمام گناہوں کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، تو کامیابیاں اس کے قدم کے بوتے لے رہی تھی۔ اپنے ماضی کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد ماضی پر چلنے کی کوشش کرو۔ آج بھی تمہارے لیے دروازے کھلے دکھائی دیں گے، آج بھی تمہارے لیے بزرگوں کی چوکھٹیں تمہیں پکار رہی ہیں، آج بھی بزرگوں کو فیوز و برکات کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ برسات نہیں ہو رہی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کے دربار میں کس نے حاضری نہیں دی ہے۔ جب ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو پنڈت جی ہوئے تو یہی پنڈت جی منسٹر بننے کے بعد الہ آباد سنگم پر گئے تھے، اور الہ آباد سنگم پر جب گئے وہ پنڈت جی کو پنڈتوں نے کہا کہ آپ کسی انداز سے کشتی پر بیٹھ کر کے سنگم میں چلیے، تو پنڈت جی نے انکار کر دیا تھا، کہا تھا میں بھارت کا پرائم منسٹر ہوں، اسی حیثیت سے چلوں گا۔ تو اسی حیثیت سے سنگم میں جا کر کے اپنا جو کچھ کرنا تھا کریا کرم کیا۔ لیکن یہی پرائم منسٹر جی جب اجمیر شریف کی سرزمین پر آئے اور اسی دھوتی اور کرتا میں جا رہے تھے، مجاور نے ہاتھ پکڑ لیا، تم یہاں پرائم منسٹر نہیں ہو، یہ غریب نواز کا دربار ہے، یہاں دربار میں حاضر ہونے کے لیے ایک دستور ہے۔ آج بھی اجمیر میں فائل اٹھا کر کے خداموں کی دیکھو، یہ بات یہ وقت اور یہ سارا معاملہ درج ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ خدام نے بتایا کہ تمہیں سر پر پھولوں کی ڈلیاں رکھنی ہوگی، کسی وکیل کے ذریعہ تمہیں آقا کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی، تو غریب نواز سنیں گے۔ تو وہاں پر انہوں نے کرتا پہنا تھا اور غالباً شیروانی پہنا تھا اور سر پر ٹوپی لگائی تھی اور ڈلیے میں پھول بھر کر کے اپنے سر پر رکھا تھا، جیسے ایک مجرم یا ایک غلام انداز سے جاتا ہے۔ ایسے ہی پنڈت جی جب گئے غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ کے قبر انور پر پھول رکھ کر کے پنڈت جواہر لال نہرو نے جو جملہ کہا تھا، آج بھی اجمیر کی فائل میں خدامین کے پاس جو ہے اس میں جملہ نوٹ ہے، ہاتھ جوڑ کر کے
कहा था, एक गरीब नवाज, हिंदुस्तान के सुल्तान आप ही हो, मगर चंद दिन के लिए मैं भारत को भीख मांग रहा हूं, मुझे दे दीजिए। ये जुमला उसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर रहा, उसकी लड़की भी प्राइम मिनिस्टर रही, उसका नवासा भी प्राइम मिनिस्टर रहा, वो पुश्तों पुश्त प्राइम मिनिस्टर बने रहे। और ये बेचारे पता लगा रहे हैं कि गरीब नवाज जिंदा है कि मुर्दा है, मर गए कि जिंदा है। यहाँ दूसरे लोग तो भारत को भीख में मांग रहे हैं और ये बेचारे पता लगा रहे हैं हमें क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं। मुसलमानों, मैं आखिरी जुमला कह करके गुजरना चाहता हूँ। पूरे हाल में इस्लाम में अगर मुसलमानों को तबाही और बर्बादी का मुंह देखना पड़ रहा है तो वहाबियत की ये नहूसत है, उसकी नहूसत के बादल ऐसे बरस रहे हैं कि न मक्का में मुसलमान चैन से रह रहा है, न मदीना में मुसलमान चैन से रह रहा है। जहां से इस्लाम फैला है वहां के मुसलमानों को सताया जा रहा है, वहां पर परेशानियां लाहिक की जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस अरब की सरजमीन को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दस फरमाया है, आज भी अमेरिका की फौज जिद्दा के हवाई अड्डे से चंद मील की दूरी पर ठहरी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, शराबो कबाब की मंजिलें इस माहौल में चल रही हैं और तुम तकद्दुस के हक की तस्बीह करते घुमाई दे रहे हो। ये नज्द की हरामी औलादें हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया है। इन जालिमों ने कब्रों को तोड़ करके फेंका है, हजरत उस्मान की कब्र को तोड़ा है, हजरत फातिमा की कब्र को तोड़ा है, रसूलुल्लाह के गुंबद के करीब आज भी ये जूता पहन करके ये जालिम नज्दी खबीस दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूछो इन मुहाजिरों से। और मैं अर्ज करना चाहता हूं, जिस सऊदी पैसे पर तुम फख्र कर रहे हो और हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैसा दे करके तुम अपने अकीदों को फैलाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रहे हो, मैं उन नादानों से पूछना चाहता हूं कि हाजियों से पूछो, आज भी हरम शरीफ के सामने धूप में बैठ करके छोटे छोटे बच्चे अपने पेट को दिखाकर भीख मांगते हैं कि नहीं? औरतें खेमों में जाकर के भीख मांगती हुई दिखाई दे रही हैं कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, इन नज्द की हरामी औलादों को उन धूप में बैठे हुए बच्चों का ख्याल करना चाहिए कि नहीं? औरतों को रोकना चाहिए कि नहीं? उनका अगर पेट भरा होता तो भीख मांगती हुई औरतें क्यों दिखाई देती? अगर वो बच्चे खाने के लिए पाते तो जहां जमीन पर कदम नहीं रख पा रहे हो शिद्दत में धूप की बुनियाद पर, वहां बच्चे अपना पेट दिखा रहे हैं, अपने सर को पीटते हुए रो करके भीख मांग रहे हैं, वाहिद रियाल वाहिद रियाल, ए हाजी एक रियाल दे दो, हमारा पेट देख लो। मैं पूछना चाहता हूँ, हाजियों से पूछो ये हरम शरीफ के सामने मामला हो रहा है कि नहीं? ये नज्द की हरामी औलादें इस तरह से मामला पेश करती दिखाई दे रही है कि नहीं? ये कलमा नमाज की आड़ में मुसलमानों के ईमान पर डाका डाल रही है। सच फरमाया है कहने वाले ने और इमाम अहमद रजा खान ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हें होशियार होने की जरूरत है। तुम इनके कलमा नमाज रोजा की बुनियाद पर इनके पीछे न जाना। अपने ईमान को बचाना तुम्हें गाजी की चौखट काफी है, तुम्हें ख्वाजा अजमेरी की चौखट काफी है, तुम्हें हजरत नसीरुद्दीन चिरागे देहली की चौखट काफी है, तुम्हारे लिए महबूब इलाही की चौखट काफी है, तुम्हारे लिए गौसुल आजम का दरवाजा काफी है। अपने इन्हीं बुजुर्गों की चौखटों से लगे लिपटे रहना, तो जो हश्र इनका होगा वही हश्र तुम्हारा भी होगा, जो दस्तूर इनका होगा वही तुम्हारा होगा। आज सारी वहाबियत इस बात पर लगी हुई है कि मुसलमानों को सबसे पहले वलियों से दूर किया जाए और वलियों की नफरत इनके दिलों में डाल दी जाए। जब ये वलियों की ताकतों से मुनकिर हो जाएंगे तो रसूल की अजमत इनकी समझ में न आएगी। इनका मकसद सिर्फ यह है कि अगर ये वलियों की ताकत समझते रहे और वलियों की अजमत इनके दिल में बैठी रहेगी तो इनका ज़मीर खुद फैसला कर लेगा कि जब वलियों की ताकत का हाल यह है तो रसूलुल्लाह की ताकत का हाल क्या होगा। जब वली अपने हाथ में मिट्टी ले ले तो सोना बन जाए, वली चलते हुए दरिया के धारे को रोक दे, वली बहती हुई हवा को रोक दे, वली की बारगाह में कोई जाए कोई मुराद पेश करे और उसके वसीले से उसकी दुआ ले तो उसको कामयाबी मिल जाती है। जब लोग देखेंगे कि वलियों से यह काम हो रहा है तो नबियों का हाल क्या होगा। इसलिए नबियों से उनकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी। मोहब्बत का रिश्ता तोड़ा जा रहा है, माहौल खराब किया जा रहा है। ये आज ही से नहीं है बल्कि याद से ये बातें चली आ रही हैं। यही सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब आपको मैं नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए ले चल रहा हूं। मुझे बहराइच में बुलाया जाए या न बुलाया जाए इसकी परवाह मुझे नहीं है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, आज वक्फ बोर्ड में एडवाणी नहीं बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड में अटल बिहारी नहीं बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हवाला किया गया है। हिंदुस्तान में 2 वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, एक शिया वक्फ बोर्ड है। शिया वक्फ बोर्ड का तसल्लुत बहराइच आस्थाने पर नहीं है, अजमेर के दरगाह की पासबानी शियों के जिम्मा नहीं है, पनाम सुन्नियों के जिम्मा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों से मैं मुतालबा करना चाहता हूं कि तुम अपनी सियासत चमकाने के लिए चीख तो रहे हो, लेकिन क्या तुमने ये आवाज कभी उठाई है कि बहराइच की सरजमीन पर वक्फ की जितनी जमीन है गाजी पाक के नाम पर दरगाह के लिए उस जमीन को खाली किया जाए। उस जमीन पर फसलें प्राइवेट खड़ी नहीं हो सकती हैं, नीचे शोहदा की कब्रें हैं, वहां गंदा पानी जमा नहीं हो सकता है, वहां की कब्रों की हिफाजत की जाए।
जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हारा मकसद है कि आसार कदीमा बर्बाद हो जाए? वक्त बोर्ड पर जब हम काबिज रहेंगे तो हम रकम नहीं देंगे और हम वहाँ की हिफाजत नहीं करेंगे, रफ्ता रफ्ता तारीख खुद मिट जाएगी। और तुम अरब की तरह से यहाँ के बुजुर्गों के निशानों को मिटा देना चाहते हो, तुम्हारा मकसद यही है। वरना मैं कहता हूँ कि जो लोग अपने आप को आमिल बिल हदीस कहते हैं और अहले हदीस के नाम से पुकारे जाते हैं, उन्हें चाहिए कि अगर उनके अंदर जर्रा बराबर भी गैरत है तो वक्फ बोर्ड के किनारे ना जाएं, इसलिए कि वक्फ बोर्ड के कागज पर ये दस्तखत करते हैं तो सुन्नी बनकर करते हैं, वक्फ बोर्ड के माल को लेते हैं तो सुन्नी बनकर के लेते हैं, वक्फ बोर्ड का ओहदा कबूल करते हैं तो सुन्नी बनकर के कबूल करते हैं। तो तुम वक्फ बोर्ड में तो सुन्नी बन रहे हो, रजिस्टर पर दस्तखत सुन्नी होकर के कर रहे हो, और जब वक्फ बोर्ड से निकलते हो तो कहते हो हम आमिल बिल हदीस हैं। हम चारों इमामों में से किसी इमाम को नहीं मानते, हमारा ईमान सिर्फ और सिर्फ हदीसों पर है, हम हदीसों पर अमल कर रहे हैं। मैं कहता हूं जैसे शिया वक्फ बोर्ड है, ऐसे सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ऐसे तुम अपने लिए देवबंदी और आमिल बिल हदीस वक्फ बोर्ड अलग कर लो, हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। न हम तुम्हारे वक्फ बोर्ड में जाएंगे, न तुम हमारे वक्फ बोर्ड में आना, न तुम हमारे औकाफ पर, हम तुम हमारे औकाफ पर हम हमला करेंगे, न हमारे औकाफ पर तुम हमला करोगे। नादान औकाफों पर कब्जा कर करके तुम बुजुर्गों की निशानियों को मिटाना चाहते हो। इसलिए मुसलमानों, हर जगह से यह एहतजाज किया जाए कि वक्फ बोर्ड में उन्हीं लोगों को ओहदा दिया जाए जिन लोगों को औलियाए किराम से मोहब्बत है और जिन लोगों का अकीदा वही है जो वलियों का अकीदा है, और वली के अकीदे से जिनका अकीदा फिरा हुआ है उन्हें कोई हक नहीं है कि वली के चौखट की पासबानी करे। अगर बाप की जायदाद गैर को दे दी जाएगी तो उसे कोई दर्द नहीं होगा, वो बर्बाद करके छोड़ेगा। बाप की जायदाद का जो मुस्तहिक होता है, जो वारिस होता है, उसी को वारिस बनाया जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा, उसी को जिम्मेदारी सौंपी जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, औकाफ पर तो हमारा कब्जा होना चाहिए। हम बुजुर्गों को मानने वाले हैं, औकाफ की सारी जिम्मेदारी तो हमारी होनी चाहिए। हम उनके कब्रों की हिफाजत करने वाले और उनके कब्रों की अजमत को देख करके मोहब्बत में आने वाले हम लोग हैं। सारा मामला तो हमारे लिए होना चाहिए। तो तुम बुरों की सोहबत से बचो और इन नेकों की सोहबत इख्तियार कर लो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुनीदम की दर रोज उम्मीद दीम बदारा बने का बबख्शत करीम। कयामत के दिन अल्लाह ताला नेकों के सदका में, अच्छों के सदका में बुरों की बख्शिश फरमा देगा, बुरों की बख्शिश हो जाएगी। वो कैसे बख्शिश होगी जरा देखो। एक हदीस की रोशनी में मैं आपको बताता चलूं। जन्नतियों की लाइन अलग है, जहन्नमियों की लाइन अलग है। वो मुमताजुल यौमा अजफल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। सारे लोग अलग हो गए, ये मुजरिमों की जमात है, ये जन्नतियों की जमात है, ये जहन्नमियों की जमात है। अब जहन्नमी जहन्नम में जाने लगा, जन्नतियों के सब से गुजरेगा जहन्नमी जहन्नम में जाते हुए, तब तक जन्नती का हाथ पकड़ लेगा। जन्नती कहेगा क्या बात है, जहन्नमी कहेगा मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, अमा तारिफ नहीं नहीं पहचानते तुम, तो कहेगा नहीं पहचानता हूं, कहो बात क्या है। वो कहेगा सुनो, अनल्लज़ी वहब्तु लका वज़ूअन, मैं वो हूं कि मैंने आपको पानी दिया था वज़ू करने के लिए, आप जन्नत में जा रहे हो, मैं जहन्नमी करार दे दिया गया हूं, मैं उसका बदला चाहता हूं। एक दूसरा पहुंचेगा, वो हाथ पकड़ लेगा, मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानता हूं, अनल्लज़ी फ़क़ैतुहु शरबतन, मैंने आपको एक गिलास पानी पिलाया था, मैं उसका बदला चाहता हूँ। आप गौर फरमाइए, यह हदीस शरीफ में है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा की भरी अंजुमन में जब इसको बयान किए हैं तो सहाबा की तबीयत कैसी होगी वो जाने, महफिल में हाजिर होने वाले समझें कैसी लज्जत रही होगी, इस बयान में कैसा लुत्फ रहा होगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अब हाल क्या होगा कि दोनों हाथ पकड़े हैं, दोनों खड़े हुए हैं, बदला मांग रहे हैं। रब की तरफ से इरशाद होगा, मेरे बंदे जन्नत में जाते क्यों नहीं? बंदे अर्ज करेंगे, परवरदिगार इसने दुनिया में मुझको वज़ू करने के लिए पानी दिया था, उसका बदला मांग रहा है, इसने दुनिया में मुझको पानी पिला दिया था, उसका बदला मांग रहा है। तो जन्नती को वज़ू आपने करा दिया, जन्नती को आपने पानी पिला दिया, अब उसका देखो मामला। फयशफ़अु लहू फयदखुलहुल जन्ना, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। मफ़हूम यह है कि अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, मेरे बंदे हाथ पकड़ ले जन्नत में, उसको भी लेकर चला जा। अल्लाहु अकबर। अब आपने जिस जन्नती को पानी दिया है वो जन्नती आपको जन्नत में लेकर जा रहा है, जिस जन्नती को आपने वज़ू करा दिया है वो जन्नती आपको जन्नत में लेकर के जा रहा है। तो पानी पिला दो, वज़ू करा दो, वो आपको जन्नती बना रहा है, जन्नत में लेकर के जा रहा है। और गाजी सरकार को इतनी पावर नहीं है कि वो जन्नत में ले जाए, इतना ताकत नहीं है, इतनी ताकत की जन्नत में ले जाए।
कौन प्यारे गाजी सरकार को तो वो ताकत मिली है, वो ताकत मिली है कि सब लोग अपनी जिंदगी की गवाही देते हैं और ये ऐसी जमात है कि इनकी जिंदगी की गवाही रब दे रहा है। इन्हें मुर्दा ना समझना, ये जिंदा हैं, ये जिंदा हैं, ये जिंदा हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अब बताओ आप इन बुजुर्गों की कितनी फजीलत है। इसीलिए शेख सादी ने कहा कि सुनीदम की दर्रोज उम्मीद बीन बदारा बने का बबख्शत करीम, अल्लाह ताला कयामत के दिन नेकों के सदक़े में बुरों की बख्शिश फरमा देगा, बुरों की मग़फ़िरत हो जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है नेकों के साथ हो जाओ, और जब नेकों के साथ रहोगे प्यारे तो तौर तरीका वही होगा। और वलियों को कोई खौफ कोई गम नहीं है, न तो आखिरत के लिए उनको गम है और न दुनिया में उनके लिए कोई खौफ है, वो किसी से नहीं डरते हैं। चुनांचे सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली के ताजदार का हाल देखो। जब बादशाह तुगलक को ये बात मालूम हुई कि सुल्तान निजामुद्दीन महबूब इलाही ये अपना लंगर दिनों रात जारी रखते हैं, तो इनका लंगर कैसा जारी था? 60 बैलगाड़ी प्याज के छिलके हर रोज आपके लंगर खाने से फेंके जा रहे थे। अब आप अंदाजा लगाओ, इतना सालन बन रहा था कि 60 बैलगाड़ी प्याज के छिलके फेंके जा रहे हैं, तो खाना कितना बनता रहा होगा, कितने लोग खाते रहे। तो बादशाह से जाकर के लोगों ने कहा, बादशाह आपका खजाना फेल हो जाएगा, जब इतना खर्चा ये कर रहा है फकीर और न जाने कहां से आ रहा है। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं फला जंग पर जा रहा हूँ, जब जंग से वापस आऊंगा तो खबर लूंगा बुजुर्ग साहब की। लोगों ने आकर के अर्ज किया, अरे सरकार आपको तो वो बड़ा धमकी दे रहा था बादशाह जो जंग पर गया हुआ है। तो आप इरशाद फरमाते हैं, हुनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। फिरोज शाह तुगलक पलटे और दिल्ली पहुंच भी न पाए कि रास्ते में मौत आ ली और वहीं पर जान जाने आफरी के सपुर्द कर दिया। मौत आ गई, फिरोज शाह तुगलक नहीं दिल्ली पहुंचे नहीं, दुनिया से चले गए। अब जरा सरकार महबूब इलाही का जुमला गौर करो कि हुनूज दिल्ली दूरस्त है, अभी दिल्ली दूर है। आपने इरशाद फरमाया, वो जुमला उस पर सादिक आ गया। यही सरकार महबूब इलाही है। अल्लाह अकबर। सरकार महबूब इलाही की बारगाह में एक बगान का जमींदार पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने कहा, हुजूर मेरी जमींदारी का कागज गायब हो गया है, अगर वो कागज ना मिला तो मेरी सारी जमीन हुकूमत हड़प कर लेगी। सरकार मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आप फरमाते हैं, चला जा हलवाई की दुकान पर मिठाई ले और बाबा साहब के नाम पर फातिहा कर दे, तेरा कागज मिल जाएगा। अब ये जब हलवाई की दुकान पर गया और मिठाई लिया, हलवाई ने मिठाई वजन किया, एक कागज का टुकड़ा उठाया कि उसमें मिठाई को फाड़ करके रखे। तब तक ये चीख पड़ा जमींदार। इसने कहा, हलवाई से रहने दो, वो कागज का टुकड़ा ना फाड़ना, वो हमको दे दो। उसने सही तालीम कागज का टुकड़ा दे दिया। अब ये देख रहा है तो वही मेरे जमींदारी का कागज है जो हलवाई की दुकान पर से मुझे मिल रहा है। कागज का टुकड़ा जेब में रखा और दूसरे कागज में मिठाई लेकर के बाबा की बारगाह में आया। आपसे अर्ज करता है, हुजूर मैं जब मिठाई वजन करा रहा था और वजन करके जब वो कागज के टुकड़े में मिठाई देने लगा तो जिस कागज को उठाया यही मेरा कागज था खेत का। मैं पा गया हूँ सरकार। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही मुस्कुरा पड़े। तो वली के देने का अंदाज जरा मुलाहजा फरमाइए। वो देख रहे हैं कि हलवाई की दुकान पर इसका कागज रखा है, उनकी रूह को सवाब भी पहुंच जाएगा। तो बुजुर्गों के देने के अंदाज किस तरह से निराले हैं, ये बुजुर्गों की बारगाहें हैं। मैं कहता हूं प्यारे, जब निजामुद्दीन महबूब इलाही की निगाह का हाल यह है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस निगाह का हाल क्या होगा। उनके दरबार से क्या नहीं मिलेगा, गाजी पाक के दरबार से क्या नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें गाजी का आस्ताना छोड़ना नहीं है और गाजी पाक के फूज़ बरकात को हर हालत में अल्हम्दुलिल्लाह लूटना है। आज सारे अजमेर वाले अजमेर पहुंचे हुए हैं। गरीब नवाज की तरफ से खजाना लुटाया जा रहा है, गरीब नवाज की तरफ से ऐसा खजाना लुटाया जा रहा है ऐसा कि पाने वाले पा रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया कि अजमेर शरीफ को अजमेर शरीफ कहना जायज है कि नहीं, तो फतावा रज़िया में तहरीर फरमाते हैं कि अगर वो यूं ही एतराज करता है तो महरूमुल किस्मत है, बेबरकत है, और अगर बदअकीदगी की बुनियाद पर एतराज करता है तो आप तहरीर फरमाते हैं हद कुफ्र तक ये मामला है। अल्लाह अकबर। वो अजमत है अजमेर शरीफ का, अल्लाह अल्लाह। और यही सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत है, लिखते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि दुआ के कबूल होने की जगह अजमेर शरीफ है, वहां दुआ कबूल होती है। मुजद्दिद आज़म अपनी किताब में तहरीर कर रहा है, वहां दुआ कबूल होती है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई इसी तरह इरशाद फरमाते हैं और आला हजरत इस तरह से कहते हैं कि मज़राए चिश्त बुखारा तो अजमेर। गौस पाक की बारगाह से एक सिलसिला पेश कर रहे हैं। ये सरकार गौस पाक, मज़राए चिश्त बुखारा तो
अजमेर, और कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और आला हजरत के भाई फरमाते हैं कि ख्वाजाए हिंदू दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, और कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, मांगने वाला तेरा। अल्लामा अरशदुल कादरी के हवाले से मैं बयान कर रहा हूँ, उन्होंने इस वाक़े को दिल्ली में बयान किया। अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं कि राजस्थान का एक गरीब आदमी था, वो लोगों से सुना करता था कि अजमेर शरीफ जो मांगो पा जाओगे। चुनांचे वो लड़की की शादी किया, मकरूज हो गया, 30,000 पर उसने अपना मकान गिरो रख दिया 1 महीने के लिए, और तारीख तय हो गई कि अगर 30 तारीख पूरे होते होते तुम रुपया ना दे पाओगे तो मकान मेरा हो जाएगा। ये तारीख तय हुई। अब ये बेचारा बहुत परेशान हुआ, भागा आया अजमेर शरीफ, रोज यही रट लगा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज 30,000 रुपया दे दो, गरीब नवाज 30,000 रुपया दे दो। खाने के लिए तो कुछ नहीं है, फकीरों में मक्तों में बैठ जाता था, खा लेता था, वक्त गुजारता चला जा रहा है। टाइम जब पूरा हो गया, 28 तारीख आ गई महीने की, तो घबराया। उसने कहा सिर्फ 2 रोज रह गए हैं, अगर 2 दिन के अंदर अंदर मैं घर न पहुंचूंगा तो घर का सारा सामान पड़ा रहेगा, मकान तो अब हाथ से चला ही गया। गरीब नवाज का रौजा देखा, रौजा देख करके रवाना हो गया, आया कोटा पहुंचा, और कोटा जब गाड़ी आई तो उस गाड़ी पर सवार हुआ। वो दिल में रास्ते भर सोचता रहा कि गरीब नवाज के दरबार से सब कुछ मिलता है, मैं 30,000 रुपया ना पा सका, मेरी गुर्बत कैसे दूर होगी। ये लोग ऐसे ही तो नहीं कह दिया करते हैं, ये अकीदत की रवानी तो नहीं है। ये सारी बातें वो सोच करके जैसे ही अपनी सीट पर बैठा था, कुछ उसको जरूरत पड़ी, वो सीट से उठ गया, दूसरी जानिब आया। तब तक लोग क्या देख रहे हैं कि एक आदमी आया और उसने कपड़े में एक बची हुई चीज वहीं पर रख दी, और रख करके वो वापस हो गया। अब ये फिर आया, अपनी जगह पर बैठा। लोग सोच रहे हैं कि रखने वाला न जाने क्या बांध करके रखकर चला गया है, ट्रेन चल गई, वो आया नहीं, अभी काफी दूर ट्रेन चली गई, वो आया नहीं। तो इसने कहा लाओ देखो तो इसमें कौन सी चीज है कपड़े में लपेटी हुई। जैसे उसने हाथ लगाया तो उसको एहसास हुआ कुछ कागज है। जब उसने कपड़े की पुर्जा खोली तो उसने देखा कि 3 गड्डी 10,000 की नोटें रखी हुई हैं। वो चीख पड़ा और ट्रेन से छलांग लगाना चाहता था कि लोगों ने पकड़ लिया। कहा बात क्या है? उसने कहा बात जो है अब बता रहा हूँ, सुनो। वाह मेरे गरीब नवाज, बात झूठी नहीं है, सही है। आप दिल देखा करते हैं सरकार गरीब नवाज, आपसे जो मांगे वो आप पता कर रहे हैं। तब उसने अपना सारा वाकया बयान किया कि मैं 30,000 कर्जा था, मकान गिरो पर रख दिया था, तारीख मुतय्यन हो चुकी थी और 30 तारीख को मेरा मकान चला जाता, मैं 28 को भागा हूँ। अब ये जा रहा हूँ अपने मकान का सामान निकालने के लिए। मैं गरीब नवाज की बारगाह में 30,000 लेने के लिए आया था। मैं बैठा था, वो मेरे सरकार की तरफ से अतिया आया है, ये देखो 3 गड्डियां 10,000 की मौजूद हैं। रख करके जाने वाला चला गया, नहीं आया। बताओ किसी ने उसका चेहरा देखा हो तो? ये मेरे गरीब नवाज की अता है, इस तरह से अता फरमा रहे हैं। गरीब नवाज से जो मांगो देते क्या नहीं है प्यारे, लेने का तरीका चाहिए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि जब अपने आका की बारगाह में सवाल करो तो सवाल की तरह सवाल करो, और जब सवाल नहीं कर पाते हो तो यही फरियाद पेश कर दो कि सलीका मांगने का हम गवारों को नहीं आता, सलीका मांगने का हम गवारों को नहीं आता, और जहां चाहो गदाए आस्था को सरवरी दे दो। डेकल साहब ने बड़ी अच्छे अंदाज में बहुत खुलूस से पेश किया था। तो कहने का मतलब है प्यारे, और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का ये शेर है कि सलीका मांगने का हम गवारों को नहीं आता, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। सरकार आप अपने काम को देखिए, हमारे मांगने को न देखें। हम तो भिखारी हैं, मलिक हैं, हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं। आप नेकोकार हो, आपकी नेकियों का वसीला रब की बारगाह में पेश है। आप पर जो रहमो करम की बरसात हो रही है उसके चंद छींटे हमें भी मिल जाएं। जब ये अंदाज लेकर के हाजिरी दोगे इंशाअल्लाह जहां भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब रहोगे। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद, सरकार गरीब नवाज की फूजों बरकात जिंदाबाद पाइंदाबाद, आस्ताने गाजी सरकार जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब सलाम पढ़ अल्लामा अरशदुल कादरी के हवाले से मैं बयान कर रहा हूँ, उन्होंने इस वाक़े को दिल्ली में बयान किया। अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं कि राजस्थान का एक गरीब आदमी था, वो लोगों से सुना करता था कि अजमेर शरीफ जो मांगो पा जाओगे। चुनांचे वो लड़की की शादी किया, मकरूज हो गया,
30,000 पर उसने अपना मकान गिरो रख दिया 1 महीने के लिए, और तारीख तय हो गई कि अगर 30 तारीख पूरे होते होते तुम रुपया ना दे पाओगे तो मकान मेरा हो जाएगा। ये तारीख तय हुई। अब ये बेचारा बहुत परेशान हुआ, भागा आया अजमेर शरीफ। रोज यही रट लगा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज 30,000 रुपया दे दो, गरीब नवाज 30,000 रुपया दे दो। खाने के लिए तो कुछ नहीं है, फकीरों में मक्तों में बैठ जाता था, खा लेता था, वक्त गुजारता चला जा रहा है। टाइम जब पूरा हो गया, 28 तारीख आ गई महीने की, तो घबराया। उसने कहा सिर्फ 2 रोज रह गए हैं, अगर 2 दिन के अंदर अंदर मैं घर न पहुंचूंगा तो घर का सारा सामान पड़ा रहेगा, मकान तो अब हाथ से चला ही गया। गरीब नवाज का रौजा देखा, रौजा देख करके रवाना हो गया, आया कोटा पहुंचा, और कोटा जब गाड़ी आई तो उस गाड़ी पर सवार हुआ। वो दिल में रास्ते भर सोचता रहा कि गरीब नवाज के दरबार से सब कुछ मिलता है, मैं 30,000 रुपया ना पा सका, मेरी गुर्बत कैसे दूर होगी, ये लोग ऐसे ही तो नहीं कह दिया करते हैं, ये अकीदत की रवानी तो नहीं है। ये सारी बातें वो सोच करके जैसे ही अपनी सीट पर बैठा था, कुछ उसको जरूरत पड़ी, वो सीट से उठ गया, दूसरी जानिब आया। तब तक लोग क्या देख रहे हैं कि एक आदमी आया और उसने कपड़े में एक बची हुई चीज वहीं पर रख दी और रख करके वो वापस हो गया। अब ये फिर आया, अपनी जगह पर बैठा। लोग सोच रहे हैं कि रखने वाला न जाने क्या बांध करके रखकर चला गया है, ट्रेन चल गई, वो आया नहीं, अभी काफी दूर ट्रेन चली गई, वो आया नहीं। तो इसने कहा लाओ देखो तो इसमें कौन सी चीज है कपड़े में लपेटी हुई। जैसे उसने हाथ लगाया तो उसको एहसास हुआ कुछ कागज है। जब उसने कपड़े की पुड़िया खोली तो उसने देखा कि 3 गड्डी 10,000 की नोटें रखी हुई हैं। वो चीख पड़ा और ट्रेन से छलांग लगाना चाहता था कि लोगों ने पकड़ लिया। कहा बात क्या है? उसने कहा बात जो है अब बता रहा हूँ, सुनो। वाह मेरे गरीब नवाज, बात झूठी नहीं है, सही है। आप दिल देखा करते हैं सरकार गरीब नवाज, आपसे जो मांगे वो आप अता कर रहे हैं। तब उसने अपना सारा वाकया बयान किया कि मैं 30,000 कर्जा था, मकान गिरो पर रख दिया था, तारीख मुतय्यन हो चुकी थी और 30 तारीख को मेरा मकान चला जाता। मैं 28 को भागा हूँ, अब ये जा रहा हूँ अपने मकान का सामान निकालने के लिए। मैं गरीब नवाज की बारगाह में 30,000 लेने के लिए आया था। मैं बैठा था, वो मेरे सरकार की तरफ से अतिया आया है, ये देखो 3 गड्डियां 10,000 की मौजूद हैं, रख करके जाने वाला चला गया, नहीं आया। बताओ किसी ने उसका चेहरा देखा हो तो? ये मेरे गरीब नवाज की अता है, इस तरह से अता फरमा रहे।